So here we reached Sajjangarh Fort. So let me tell you about the entry fees and the timing of Sajjangarh Fort. The entry fees for the Monsoon Palace is 100 rupees per person, and for foreigner it is 150 per person in monsoon season. And the timing to visit Monsoon Palace is from 8 am to 6 pm. It is open all the 7 days of the week. They close the gate by 5 pm. How to reach Sajjangarh Palace? So it is 7 to 8 kilometers away from the Lake Pichola. You have to take a local cab or the auto rickshaw or a bus run by the government to reach the destination. From the gate of Sajjangarh to Sajjangarh Palace, you can go by your own vehicle, you can go by walking, or you can hire the Activa to reach the Monsoon Palace. Even they provide their own car to go to the Monsoon Palace. If you hire a car from the main gate, they charge 200 rupees per person for the both sides. So I have hired the car from the gate for the both side. Isn't it the amazing nature view from the Sajjangarh Palace? Let me tell you why the Sajjangarh is also known as the Monsoon Palace. So it is named Sajjangarh after Maharana Sajjan Singh of the Mewar dynasty, whom it was built for in 1884. The palace offers a panoramic view of the city's lake, palaces and surrounding countryside. It was built chiefly to watch the monsoon clouds. Hence, appropriately, it is popularly known as the Monsoon Palace. It is said that Maharana built it at the top of the hill to get a view of his ancestral home, Chittorgarh. Previously owned by the Mewar royal family, it is now under the control of the Forest Department of the Government of Rajasthan and has recently been opened to the public. The palace provides a beautiful view of the sunset also. Tourists visit this place for amazing sunset view. And it also gives you a nice view of the city, which looks very beautiful in the evening. It is also very famous for the wonderful photogenic view. है ना, बहुत खूबसूरत सा व्यू। इतने ऊपर से हमें इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा बादल सामने से बहुत तेज़ी की तरफ से आ रहे थे एंड अचानक से बहुत ही घना फॉग हो गया था एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड देन तो वो मॉनसून पैलेस का प्रॉपर मॉनसून फील आया मुझे। गाइस, तो आपने देखा ये सज्जनगढ़ में ना अचानक से काफ़ी क्लाउड आ गया है। ये मॉनसून पैलेस इसलिए बोला जाता है यहाँ पे कि यहाँ से हमें पता चलता है कि बारिश कब होने वाला है करके। बट मस्त से कि बहुत अच्छा क्लाइमेट हो गया था, लाइव देखने के लिए मिला। मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया और ये बारिश होना स्टार्ट हो गया शिट। फिर मैं आई फतेह सागर लेक में, जो कि सज्जनगढ़ से 10 मिनट की दूरी पे है।
मैंने यहाँ पे बोटिंग नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी एंड बोटिंग बंद हो चुका था। सो मुझे मेरे रिक्शा वाले ने ये साई सागर के नाम के रेस्टोरेंट के यहाँ पे उतारा और उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत ही फेमस कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी मिलता है। मैंने ब्राउनी कोल्ड कॉफ़ी एंड हॉट नटेला कॉफ़ी ट्राई किया। दे वर वेरी टेस्टी। तो गाइस इस वक्त मैं ना फतेह सागर लेक के पास हूँ और वहाँ पे ये एक कॉफ़ी स्टॉल है और यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही फेमस है। तो मैंने एक लिया है ट्राई करने के लिए। अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। तो गाइस हम लोग मैं आई हूँ फतेह सागर लेक और वहाँ पे ना किसी लाइन पे सब खाने की है। तो फिलहाल मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा था तो मैं अभी चाउमीन खा रही हूँ और एक सैंडविच बोला है और मैगी। ओके नॉट सो गुड, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी आप जब भी यहाँ पे आओगे ना प्लीज़ यहाँ का कॉफ़ी पीना। बहुत स्पेशल है यहाँ का कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सज्जनगढ़ एंड फतेह सागर लेक घूमने के बाद फिर मेरा मन हुआ कुछ शॉपिंग करने का। तो फिर मैंने भैया को कहा भैया ऐसी जगह ले चलिए जहाँ मैं कुछ उदयपुर की कलाकारी के सामान खरीद सकूँ। तो फिर वो मुझे लेके आए कजरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट। Kajri Art Cottages in Udaipur, Rajasthan is the one of the leading business in the handicraft item manufacturers. It is also for the handicraft item dealers, handicraft item manufacturer, art galleries, handicraft item distributor, marble handicraft dealers and many more. I thought of shopping some saris from here. So the sari which I've selected is made on the banana leaf, and that so I bought one for my mom. Kajri Art and Craft Cottages provide the Western Indian culture products, art and craft products, specialist in tie and dye saris, designer saris, ready-made dresses, dress material, bedsheet, bed cover, embroidery artwork, pashima, silk shawl, and etc. This all product is the most searched product in Udaipur. घूमने और शॉपिंग करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी। सुना है उदयपुर बहुत ही रोमांटिक जगह भी है। सो इसीलिए मैंने भैया को कहा कि भैया मुझे एक मोस्ट रोमांटिक डिनर प्लेस पे लेके चलिए जहाँ पे मैं मेरी रात बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकूँ। तो वो मुझे ये बहुत खूबसूरत से रेस्टोरेंट में लेके आए जिसका नाम है ट्रिब्यूट, जो कि लेक पिचोला से 10 से 15 मिनट के दूरी पे है। सो गाइस मैं डिनर के लिए उदयपुर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में आई हूँ। उसका नाम है ट्रिब्यूट। ये भी लेक व्यू रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट आई, सो मुझे वहाँ का टेबल जो प्रॉपर लेक व्यू का टेबल है ना वो नहीं मिला। और यहाँ पे बारिश भी है तो उसके वजह से जो बाहर आप वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टेबल्स लगे हैं ना ये ऑपरेशनल नहीं है। तो सिर्फ 4 टेबल है जो वहाँ पे लगाया वो लोग ने, बट वो भी ऊपर अम्ब्रेला लगा के। सो बट हाँ
मेरे यहाँ से ऐसा बैकग्राउंड है, इट्स अमेजिंग। एंड मेरे टेबल में है कैंडल लाइट, सो आई एम हैविंग माई कैंडल लाइट डिनर अकेले। गाइस आप देख सकते हैं ये लोग ने टेबल कितना अच्छे से डेकोरेट किया है। लाइक आई लाइक दिस सेटअप, बहुत क्यूट सा कैंडल है और बहुत प्यारा सा इनका टिश्यू स्टैंड है। एंड दिस रेड कलर एंड वाइट कॉम्बिनेशन गिविंग यू अ परफेक्ट परफेक्ट vibe for the romantic and celebration dinner date. गाइस मुझे फाइनली लेक व्यू टेबल मिल गया। तो मेरे पीछे देख सकते हो कितना प्यारा है ये सेटअप और लेक व्यू। ओह माय गॉड, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस आज के व्लॉग में उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो मैंने ट्राई किया है, मुझे बहुत कम टाइम मिला था क्योंकि मैं बहुत लेट पहुँची थी, उसके बाद बहुत कम टाइम मिला कवर करने के लिए, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि ऑलमोस्ट मैं कवर कर लूँ। सो आपने देख लिया होगा, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और स्पेशली मेरा डिनर का जगह आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आ गई गर्मा गर्म मालपुए और प्याज की कचौरी खाने के लिए। फिर ये खाते ही मैं निकली उदयपुर के सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस का टिकट 350 रुपीज़ पर पर्सन था और फिर मैं निकल पड़ी सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने। सिटी पैलेस जाने के लिए 10 मिनट्स का वॉक है एंड काफ़ी धूप था तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था, बट आपको एक और ऑप्शन है बैटरी कार जो कि 50 रुपीज़ चार्ज लेता है लाने और छोड़ने के लिए, तो आई प्रेफर्ड बाय गोइंग वॉकिंग। सिटी पैलेस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ उदयपुर। You require at least 3 hours to complete the whole city palace tour. So to avoid the crowd, the perfect time to visit the city palace is in the early morning or the late evening. The timing of this palace is 9 to 5:30 p.m. You can hire a guide at rupees 300. They do not bargain. They have the fixed rate of guide, which will explain you the whole history of the palace. Must carry water bottle along with you. Attached to the city palace, you can also visit the Jug Mandir, which is located in between the lake. To visit Jug Mandir, you have to take the boat ride from city palace to Jug Mandir, and it is also famous for the sunset viewpoint. So here is the glimpse of some picture which I clicked at the city palace. Isn't it amazing? उदयपुर आए और कैमल राइड नहीं किया तो क्या किया बॉस। Then I went for the camel ride. फिर मैं चली उदयपुर के one of the best tourist place में, मनसापुरा करनी माता मंदिर रोप वे। It gives you scenic view of Udaipur city. I enjoyed the breathtaking view of lake, palaces, mountain and the whole Udaipur city. It is the 3-minute one-way ropeway drive. This is the another best spot to enjoy the sunset in Udaipur. Restaurant, VR gaming, massage chair, etc. options are also available here.
करनी माता रोपवे के बाद जब मैं दूसरी जगह जा रही थी, ऑन द वे मुझे ये जगह दिखी। तब मैंने कहा यहाँ रुक के एक फ़ोटो और वीडियो तो बनता ही है ना ये बहुत खूबसूरत सा जगह। एंड गेस व्हाट, मेरे पिक्चर्स बहुत अमेजिंग सा है। दिन ख़त्म होने के बाद फिर था डिनर टाइम। अब जाहिर सी बात है, हम उदयपुर में हैं तो रोमांटिक जगह पे डिनर तो बनता है। तो ये मेरा सेकेंड लास्ट नाइट था उदयपुर में। तो मैंने भैया को कहा, भैया टॉप क्लास रेस्टोरेंट में लेके चलो जहाँ मुझे बहुत खूबसूरत सा व्यू दिखे। तो वो मुझे लेकर आए अटारी, जो कि फतेह सागर लेक के पास है। अटारी रेस्टोरेंट से जो व्यू था वो तो लाजवाब था, वो आप देख ही रहे हो वीडियो में। यहाँ मुझे डिनर करके बहुत ही मज़ा आया। यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही लाजवाब व्यू है। कुछ इस तरीके से मैंने बिताए 2 दिन उदयपुर में। पैलेस, मंदिर, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि टिकट, प्राइस, डिस्टेंस सब कुछ कवर करने के लिए, और ये हेल्प करे आपको आपका उदयपुर का ट्रिप प्लान करने के लिए। रात हो चुकी है और रात के समय उदयपुर सिटी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतना कि मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। और मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।